We are diving into the Pyramid Spiritual Societies movement, PSSM, founded in 1990 by Brahmarishi Patriji, who himself attained enlightenment in 1979. The PSSM aims to spread spiritual science universally through two simple powerful tools, Anapanasati meditation and vegetarianism. Patriji's path to realizing the divine within is built on four core pillars: observing the breath for deep meditation, harnessing pyramid energy during that practice, understanding the teachings of spiritual masters, and living by the principle of vegetarianism. We recently saw this power firsthand at a conference in Dwarahat, led by Pyramid Master Krishna and his team. People came from all over the world to share their transformational stories. Together, we experienced profound silence through meditation and even held a vegetarian rally to raise awareness, stressing non-violence, ahimsa. Hello friends, good morning. I'm at Dwarahat, and behind me a pyramid is being erected by PSSM movement. We meditated for some time and somebody sang a beautiful song, and there were a lot of sharing happening here. So soon the pyramid will be built with places for people to come and stay here. We are about 10 to 15 minutes away from Mahaavatar Babaji's caves, and now we will all go to Mahaavatar Babaji's caves and then see you there. We are on a journey to one of the Himalayas' most sacred and hidden sites, Mahaavatar Babaji's cave. To begin this spiritual journey, you'll first need to take a taxi to Kokuchina village. From there, the real trek begins. An easy but steady climb of about 1 hour up the mountain path. This is the mystical place mentioned by Paramahansa Yogananda in his classic book, Autobiography of a Yogi. It is here that the immortal Guru, Mahaavatar Babaji, a light being beyond the cycle of birth and death, his presence is felt even today by many. And there are quite a few people along with me, and I'm going to ask them to talk about their journey and their experiences with Babaji. And I'm sure you're going to enjoy that. Let's go. Come. हमारे साथ कमलजीत जी हैं, दिल्ली से हैं. सो मैम, आप महाअवतार बाबा केव्स क्यों जा रहे हैं? महाअवतार बाबा जी केव्स जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से कॉल आई है बाबा जी की, और यहाँ पर हमने एक छोटी सी लैंड ली है हमारे ग्रुप ने, और उस लैंड पे एक पिरामिड का हमने सोचा है बनाने का. तो एक टेम्परेरी पिरामिड वहाँ पर बनाया है और उसका आज इनॉग्रेशन किया है. और वहाँ पर जो बैठ के हमें एनर्जीज़ फील हुई हैं, वो यही मैसेज आ रहा था कि जो बाबा जी केव्स नहीं जा सकते वो इस पिरामिड में बैठेंगे और उन्हें वही एनर्जी फील होगी. और जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट हुआ था बाबा जी केव्स जाने के लिए, वो धीरे धीरे हमारा बड़ा होता गया, और अब हमारा जो ग्रुप है वो 18 लोगों का है, और हम 18 लोग एक साथ पिरामिड देखने के बाबा जी की केव्स जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी एनर्जीज़ फील कर रहे हैं अभी से. तो बस हम भागे जा रहे हैं. आप ये आपकी थर्ड टाइम है जाने की, या नहीं, कितनी बार जा चुके हो आप? हाँ, ये थर्ड टाइम है मेरा. 2 टाइम्स मैं पहले जा चुकी हूँ और मेरे इमेंस एक्सपीरियंसेस हैं. एक एक्सपीरियंस छोटा वाला, जल्दी से हमारे ऑडियंस के लिए, छोटा वाला. हाँ, जब मैं सेकंड टाइम गई थी ना, तो मेरे को लगा कि पूरी गुफा भर गई है, मेरे लिए जगह ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूँगी. तो मुझे दरवाजे के पास थोड़ी सी जगह मिली, तो मैं हल्का सा वहाँ पर बैठ गई टिका के. और जैसे ही मैं बैठी, मुझे लगा कि उन सबको तो वहाँ बाबा जी की तस्वीर भी है और बहुत एनर्जी मिल रही है. तो मेरे को यहाँ पर पता नहीं कुछ फील होगा नहीं. तो लेकिन जैसे ही आँख बंद की और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी कि मेरी साउंड चेंज हो गई, मेरी आवाज़ निकलने लगी,
और 10 मिनट्स तक मुझे एक एक्सेसिव एनर्जी फील हुई, 10 मिनट्स। और सभी ने, वो वहाँ पर बैठे हुए सभी ने फील किया कि ये आवाज़ किसकी आ रही है, ये आवाज़। और ये कैसी आवाज़ बाद थी? में जब मैंने बताया कि मेरे अंदर से निकल रही थी, तो बोले पहचान ही नहीं जा रही, तो बिल्कुल अलग आवाज़ थी। अच्छा, बट किसने बताया क्या आवाज़ थी? कुछ क्या ध्वनि थी या? नहीं, करके थी, ऐसे आवाज़ थी, ऊंची थी, साउंड काफ़ी लाउड थी। आई थिंक वो एनर्जी इतनी ज़्यादा थी शायद, उस वजह से। ग्रेट, थैंक यू मैम। थैंक यू। GK sir, you are going to Mahatar Babaji's caves. This is your first trip? 15th trip. Oh, what brings you back every time? पहली बार 14 साल पहले आया था। हाँ, तब से मेरे को हर बार जो मैं आता हूँ, 1 साल के लिए मेरे को प्रोग्राम बनता है आध्यात्मिक में, हाँ, कैसे आगे बढ़ने का, हाँ, व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में क्या क्या करनी है। एक प्लान अपने आप निकलते रहते हैं, क्योंकि बार बार मैं ध्यान करता हूँ गुफा में और बाहर, और वो योगदा सत्संग का वो बिल्डिंग में, हर जगह में वो ध्यान करते हुए भी ऊर्जा लेनी है, और एक आत्म प्रणाली का सोल प्लान बनती है अगला साल के लिए। So I came with lot of groups every time. Even in the hard COVID also, we came with 60 people during COVID in 11 vehicles, and then we had a nice meditation, and then again we went back to India. ज़्यादा से साउथ से ज़्यादा लोग को लेकर आया था। Now I am bringing lot of foreigners like from UK, Europe, USA. Last time we had around 25 people from across UK, Europe, and then US. Yeah. and this is your 14th trip, you said. 14th trip, yeah. And you also said that when you come here, there is another purpose, a plan which gets formulated, which you follow it, Yeah. right? And if it is okay with you, I would like to know what difference and what shifts it has brought in your life, what you were to where you are today. शुरुआत में ब्रह्मर्षि पत्री जी को ये जन्म में मिलने से मेजर शिफ्ट तो आ ही चुकी है। ध्यान और शाकाहारी बनना, और इसके साथ आत्मविज्ञान और स्पिरिचुअल टैबलेट्स का उद्घाटन, ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इधर आने के बाद ये जगह का महत्व ही बोलना है, और ये आसपास गांव में इतना सारा लोग हैं, स्पेशली वो पहाड़ों में रहता है, वो लोग में बहुत सारा क्रॉनिक डिसीजेस भी हैं, अल्कोहलिक्स भी हैं। ये सब लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में, ध्यान मार्ग में ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट निकलना करके मेरे को मैसेज आया था। अच्छा। और सोनामाला पत्री मैडम ने इधर 1 महीने रुका था। मैडम भी इधर वो मेडिटेशन का पिरामिड आना चाहिए बोल के उनका संकल्प भी है। ये सब मिलकर, और जब मैं आंध्रा में साउथ में घूमता हूँ, बहुत सारे लोग क्रॉनिक डिसीजेस को दवाइयों से ठीक करने के बाद, स्पेशली द कैंसर, वो फिर वापस आएगा बोल के उनको बहुत डर रहता है, द रिकरेंस ऑफ द कैंसर। ऐसे लोगों को इधर लेके आके ट्रीटमेंट होने के बाद इधर कम से कम 40 दिन से लेकर 3 महीने 6 महीने रह के गुफा में और हमारा पिरामिड में, नेचर में वो ध्यान करने से जीवन में वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। They will understand their purpose. Wow. Once they align with the purpose, and once they align with the universe, there is no chances of recurrence. That जो डर है वो automatically चली जाएगा। One is to support the major illness, especially the cancer post-treatment people, to stop the recurrence, and to support the people around the, you know, पहाड़ में जो इतना सारा लोग हैं, alcoholic का problem बहुत है इधर। Lot of alcohol de-addiction centers are there. We already went and taught meditation in those centers. तभी हमको ये जगदीश महाराज ने मिला ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और सब लोग, जो लोग महातार बाबा जी के बारे में पूरा जानकारी लेनी है, उनका एनर्जीज को लेनी है, और साधना में आगे बढ़ने का है, आश्रम धर्म के लिए ये सही जगह है। और सर, पता है आपने एक बहुत बड़ी बात बोली अभी आपने बोला कि कैंसर, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जो लोगों को हो रहे हैं, तो मेडिटेशन
महातार बाबा जी केव्स, दिस नेचर, जैसे यहाँ देखिए अभी पूरी स्ट्रीम बह रही है, इतना सुंदर मौसम बना हुआ है, ये हेल्प करता है। लेकिन कैंसर होने से पहले, द सेल्स जनरेट होने से पहले, हाउ कैन वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे किए जाएं? आप प्लीज ऑडियंस को बताएं। डेफिनेटली हम इसके पहले एक वास्तविकता का कहानी मैं बोलना चाहता हूँ। जब मैं मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक रख के पेशेंट्स को देखना शुरू किया 2003 से लेकर 5 तक, जो लोग कैंसर होके मेरे पास आया था, वो लोग का हिस्ट्री मेरे को लेने से, वो लाइफ कहाँ शुरू किया, कैसे आगे बढ़ा, सब लोग मोर देन 75 to 80% पीपल दे विल टेल 8 साल पहले, 6 साल पहले एक दाढ़ी का आदमी हमारा गांव आया था, वो बांसुरी बजाया, ध्यान सिखाया, वो समय हमको बहुत बढ़िया लगा, लेकिन बहुत सारा कारण से कोई मदद नहीं है, ग्रुप नहीं है, इसलिए वो छूट गया। 6 साल के बाद यानी 8 साल के बाद फिर वो कैंसर होके फिर मेरा टेबल पे आया। दैट मीन्स डे 1 ही गॉट द राइटियस पाथ, द राइटियस वे, लाइक मेडिटेशन, शाकाहार और ध्यान प्रचार। एंड कई कारणों से वो राइट साइड का पाथ लिया नहीं, वो दूसरा तरफ चले गया। देन फाइनली दे लैंड इन मेजर इलनेस एज ए रिमाइंडर ऑन द बॉडी। कैंसर इज नॉट अ कैंसर, इट इज ए मेजर रिमाइंडर दैट यू आर गोइंग इन ए ऑपोजिट वे। जो जीवन में आपको जाने के हैं वो छोड़ के तुम गलत रास्तों में जा रही हो। सो फिर ठीक करने के लिए हम उल्टा जा रही है, ठीक करने के लिए बदल में एक इरिवर्सिबल डेथ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। जब वो लोग ध्यान में बैठता है, शाकाहारी बनता है, जीवन लक्ष्य के बारे में पूरा मालूम होता है, देन वो सही लाइन पर आ गया, उनके लिए कोई रेफरेंस नहीं है। सो दैट्स व्हाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आध्यात्मिक मार्ग में लेके आने से इतना सारा बीमारी केवल लोगों को ये आध्यात्मिक मार्ग में लेके आने के लिए वो एक अलार्म जैसे आ रही है, तो बंद हो जाएगी। करेक्ट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप बोल रहे थे कि कैंसर कैन बी ट्रीटेड, है ना, और ध्यान, नेचर में रहना, शाकाहारी खाना, इससे ट्रीट हो सकता है। हाँ, इसके कुछ एविडेंसेस हैं, इसके कुछ केसेस हैं जो who have got cured, जिनकी who have got मैडम, cured। सबसे पहले छोटा सिरदर्द के लिए छोटा ध्यान, बड़ा कैंसर के लिए बड़ा ध्यान। जो लोग अभी तक दिन में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा ऐसा बैठ के ध्यान किया, वो सब लोग आज भी जिंदा हैं, कैंसर होते हुए भी। देयर आर केसेस विथ एविडेंसेस। पिरामिड वैली में भीम रेड्डी, वो 10 साल पिरामिड वैली में काम किया, वो 3rd 4th स्टेज का कैंसर से डॉक्टर लोग ने हाथ नहीं कर दिया, वो पूरा पिरामिड के अंदर बैठ ही गया। सो वो पूरा बाहर आ गया, फिर 10 साल पिरामिड के अंदर बैठ के वो सेवा कहता। आरोग्य से वो ऐसा ध्यान में रह के ऐसी वो उनका मौत चले गया था 1 साल पहले। नेचुरली ही टुक हिज डेथ। कैंसर इज 10 years back story. Like that, so many people, lot of case studies, lots of research studies are already there. Can my audience reach out to you? Definitely, people can reach out to me either www.spiritualtablets.com and through pssmovement.org and Android and iOS app of Spiritual Tablets. And you can reach to people. We are operating in 14 countries, in 12 languages. 400 masters are tirelessly working to give spiritual counseling, teaching meditation, conducting workshops, and we are running 15 holistic centers where all the serious illness cases patients are coming, and with a harmonious environment, pyramid की ऊर्जा, पौर्णिमी ध्यान, सामूहिक ध्यान, spiritual counseling, लोग अपने आप खुद को ठीक कर रही हैं। Thank you very much for PMC Hindi channel. हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं महातार बाबा जी केव की तरफ। पीछे एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जिसकी खलखल आवाज आ रही है, और मेरे साथ हैं अनिल जी। अनिल जी, ये आप पहली दफा जा रहे हैं? नहीं, मैं 11-12 बार गया हूँ। अच्छा, इससे पहले 11-12 बार। तो अगर आप 11-12 बार जा रहे हैं तो ऐसा क्या है जो आपको खींचता है बाबा जी की तरफ? ये बाबा जी का पुल ही है कि जो हमेशा मुझे खींचता हुआ लेके आ रहा है, और ये तो और आते भी रहेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग एक वंडरफुल पिरामिड कंस्ट्रक्ट कराने जा रहे हैं,
और यहाँ पर हम आगे से ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करेंगे और लोगों को हम एजुकेट करेंगे कि यहाँ पर आकर ध्यान करने के लिए, और इस रीजन में भी हम काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी प्रमोट करेंगे मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड वेजिटेरियनिज्म को। ये हमारा अभी एम्बिशन है कि ये वेजिटेरियनिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन को स्प्रेड करने। आप दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली में फिलहाल 25 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, उसके पहले? मैं वाइजैक से अच्छा। रहने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ की पैदाइश है आपकी। अच्छा, और अभी जब आप इतनी दफ़ा आ चुके हैं, आप में क्या ऐसे चेंज हुआ है जो अभी आप चेंज लाइफ जी रहे हैं? सो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली बताएं। मैं सन 98 में मेडिटेशन में आया हूँ। जब मैं वाइजैक में विशाखापट्टनम में था, उसी समय से मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, PSSM के साथ। तो मुझे बचपन से ही मेरा एक इंट्यूटिव फीलिंग मेरा भीतर से अंदर से आता था कि जो भी चीज़ें सामने दिख रही हैं, ये एक confusing and it's like a matrix I used to feel. बट मेरे पेरेंट्स से या किसी से भी मैं पूछता था, फिर सब मुझे चुप करा देते थे। बट मुझे जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। ओके, और मुझे बचपन से ये फील होता था कि whatever we are seeing is not the right picture actually. So this is a deceiving picture. मुझे फील होता था बचपन से। जब मैंने पत्री सर का मेडिटेशन सेशन फर्स्ट टाइम मैंने 98 में अटेंड किया, और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार कि अभी मैं सही ट्रैक पे हूँ। उसके बाद मैंने दिल्ली में काफ़ी मेडिटेशन सेशंस भी ऑर्गेनाइज किया। और तो आपके जीवन में क्या फ़र्क आया? जीवन में एक फ़र्क यह आया कि मेडिटेशन करने से एक तो जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स तो मुझे मिला ही, जैसे कंसंट्रेशन, और जैसे एक बार मैं किसी को देखता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ तो फिर मैं बोलता नहीं हूँ। ओके, और हेल्पिंग नेचर मेरा पहले से था, अभी और बढ़ गया है। लोगों को हेल्प करना ये मेरा पैशन हो गया। आई लव टू हेल्प पीपल और सर्व पीपल इन एनी विच वे आई कैन। सो अभी तक मैंने वो नहीं सुना कि आपके जीवन में क्या फ़र्क आया। मेरा जीवन में ऐसी कुछ कमी थी जो आपको मेडिटेशन के बाद लगा कि हाँ, ये देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो मैंने बचपन से मुझे ये कमी महसूस होती थी कि जो कोई भी चीज whatever I was feeling or seeing in front is with not my physical real. eyes, with my physical eye is definitely not the real, but nobody was there to tell me that yes, you are right. Okay, the moment I got in touch with Patri sir and friends around, then I realized, no, I'm in track. Super. Yeah. Great. Thank you so much. Thank you. You are from Hyderabad. And this is your first trip to Mahatma Babaji's caves? No, this is my third trip. I came in 2012, 11, 12, something, that kind of once. Again once, and now this is the third time. Third time. Yeah. And what brings you every time to come and be here with Babaji? No, it is calling. It's not like planned or anything. Such things happen when, when some ascension happens or some things are shifting in us. Generally call from Himalayas, it happens like that only. Even from my childhood, I was inquisitive about Himalayan knowledge or play going there. So I had this twice or thrice experience with Babaji's communications also. Have you felt his presence? Yeah. Whenever Whenever experience. I needed protection, it happened twice or thrice. So I used to have a deep picture of Babaji sitting in the Himalayas around a campfire with a discussion body kind of. So I was always feeling that I was already there.
Ante this is my physical realm, but I was there in some lifetime or whatever, I don't know, maybe in another astral portal or whatever. But I had this strong feeling that that place is not new to me. Even when I walk in this part, I don't feel I'm new. When I go home, I feel homesick actually when I'm going away from here. Not only this, entire देवभूमि मुझे ऐसे लगता है. तो पहला एक्सपीरियंस जो था हमारा 2011 में हमारा कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा था. अभी मैं बता सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि दिस इज़ अ प्रोसेस, बट एट दैट टाइम इट वाज न्यू टू मी आल्सो. बट आई हर्ड अबाउट इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन कम्युनिकेशंस. सो दिस वर्ड्स वेरी वेरी क्लियर. आई वाज आल्सो बीइंग देयर इन दैट. आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. आई वाज चेयरिंग और talking something. So that was my first time when I know that Matar Babaji and all these people exist in different they're discussing about the galaxies, how to work out all these things. So I am part of that much I understood. That was my first experience. Some second time, see, generally in childhood we used to have one Tamil movie, Baba movie I saw, then that Mudra and all I saw. Then I realized this is not new to me. The way the movie was depicting material world connection with the spiritual world, I felt very connected to. Then I realized this Babaji only. So nobody else is called Babaji that time, only Babaji na. Generally we say Babaji. So like that, again after my Anapanasati journey with Patri sir, it intensified. And when did you meet Patri sir? Patri sir 2018. 11-12 I met him. I didn't believe him and I went in my own path. But he said you will come back again after some years, and I did come back. And my contribution to the Pyramid Society, PMC, it was different way. Mostly the women meditation circles, the awakening part, PMC, branding and consulting. So 4 years we had very intense journey. Whatever knowledge was incomplete in me till that time, sir gave me immense knowledge. What has changed in your life after you have started walking on the spiritual path? Everything. Many things might have happened. Tell me one thing that in this moment is occurring to you that has brought a major shift in your life. A very clarity of life purpose and what should be done the next step. For example, how are you connected to your higher version? Immediately what to do, that will be get revealed when you are more in the spiritual path. And that's what happened to you. Without doubt, confusion, and with clarity, the truth path is visible. Suppose which guru now, or next what is after Patri sir vacated body. Also, I clearly got the message how to approach to Nikhil Swami Narayan Datta Sri Mali came and protected me. And this, so there's when you are in spirituality, you are without any judgment, fear, doubt. You get to the source, and your joy grows. One last question: what is your purpose of life? Seeking my truth and ascending myself. That is my purpose of my life. I incarnated on the earth again to, finish up my cycle, obviously. So that is her purpose. What is your purpose? Please write to us. Thank you so much.